جوشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، سنی مسلم، سنی مسلم۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو ہیلو، ہاں جی وسیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی وسیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں 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 جی جی، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کس جماعت سے؟ حنفی حنفی حنفی؟ ہاں، امام ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ؟ یا اچھا اچھا، میلاد النبی پہ کیا اعتراض ہے آپ کا؟ میلاد النبی پہ اعتراض، میلاد النبی از نتھنگ بٹ برتھ ڈے، رائٹ؟ ہاں انگلش میں بولیے تو برتھ ڈے، برتھ ڈے ہوتا صحیح ہے آپ، اور آدمی لوگ جو بھی عربی میں ایکسپورٹ کر بولیے رہے گا ہیں تو نا، میلاد، عربی میں بولیے گا میلاد۔ صحیح نہیں، وہ میلاد عربی میں مفتی نہیں ہوں کہ عربی میں کیا ہے انگلش میں کیا ہے بولے گا، بیسک عربی میں نالج کیا میں ہے، بات انگلش کرتے میں ہیں، کیا ہے میں مطلب؟ تو کامن آدمی ہوں، اچھا، اس میں بات کوئی بھی کال کرتا بات کرنے کا لہجہ نہیں، تمیز نہیں، گالی دے کے بات کرتا، نہیں اس نہیں، سے پہلے گالی بات والی کیا سے تھا، بات نہیں ہوگی، اس کے لیے ٹینشن مت لیجیے۔ ہاں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، گالی دے کے بات کرتا، سمجھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اچھا، گالی دے کے بات کرتا، ابھی آتا ایسے بات کیا کرتا وہ سنت کتنے ہے بولتا، ارے میں مکس ہوتا تو پورے سنت بولتا تھا، ابھی میرے کو فرائض معلوم، فرائض بولتا ہوں، سنی معلوم، سنت کتنے ہے میرے کو، ڈیلی پریکٹس میں لٹا تو نہیں مرتا نا، اتنے سنت ہے، نماز میں جو توجہ رہتی ہے وہ رہتی ہوتا ہے، اتنے سنت کر کے سرٹن ٹائم بہت مہینے پہلے، بہت سالوں پہلے پڑھا تھا میں، اتنے سنت بول کے، ابھی ایک دم رہتے سنت کتنے گلے کے پوچھ جاؤ کدھر سے بولوں میں؟ نہیں ابھی محفل میلاد پر بات صحیح کرنی نا، کہ میلاد النبی پر کیا معاملہ ہے آپ کا؟ ڈائریکٹ ٹاپک کی بات کرو بول رہا تو سنت کتنے، فرض کتنے وہ میرے کو معلوم ہے، اچھا، لیکن اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرنا نا، چلو ہمیں تو اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرنا، وہ کیا پرابلم کیا اسٹارٹ ہوئی بولے تو سہیل، چلو میں ہمیں پرابلم کیا ہوئی تو جی سہیل ایک اسٹیٹس ڈالے تھے، اس کے اندر کیا پرابلم تھی، ایک میسج، چلو نا سہیل ایک میسج میں یہ ڈالے تھے، سہیل کیا ہونا آپ کو دوست؟ جی نہیں، میرا نام صادق وارسی ہے۔ نہیں سہیل کیا ہونا تمہارے کو؟ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے۔ سہیل سہیل؟ ہاں، کیا سہیل؟ جو اسٹیٹس پرابلم اسٹارٹ ہوئی نا، ابھی اختلاف جو اسٹارٹ ہوا نا، ہاں، میرے کو تم نہیں کر رہے، میرے کو اس کا پرابلم نہیں، اب تمہارا محبت کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا، میرا محبت کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا، میں سہیل کو کیا بات پوچھا، فرسٹ سہیل ایک اسٹیٹس ڈالے تھے، میرا بھیا ہے وہ، کزن، دور کا نہیں، میرا خلیرا، میری ماں، میرے باپ کے بہن کا بیٹا وہ، تو بمبئی میں ہے، ہم کرناٹک میں ہیں، تو میں سہیل کو کیا پوچھا، سہیل ایسا کچھ ایسے بھائی نے سہیل اسٹیٹس کیا ڈال کے تھے، جو نبی جو پیدا ہوئی سو لڑکی بیٹے پہ مٹھائی اور حضور کی ولادت پہ دلیل پوچھے، تو اس پر تھوک سم تھنگ ایسا، وہ پل ٹو پل یاد نہیں ہے میرے کو، اس پہ ہمارے پاس تھوک ہے کیا ہے، میں کیا بولا سہیل، ٹاپک اسٹیٹس سے سیٹ ہوتا، اسٹیٹس سیٹ ہوتا، ولادت پہ کوئی بھی دلیل نہیں پوچھا، کوئی بھی پوچھا گیا، حالانکہ مسلمان، میں تو چھوڑو مسلمان ولادت پہ پوچھ نہیں سکتا، غیر مسلمان بھی مانتا ہے کہ ولادت میرے نبی کی ہوتی ہے، اور دنیا بنی سے کسی وجہ سے ولادت کی، نبی کو ولادت کرنے کی وجہ سے دنیا بنی، جی جی، ہاں، تو میں کیا بولا اس کو، سہیل کو، سہیل ایسا نہیں رہتا، تمہارے کو کنفیوژن ہے تو تم اسے ڈالو، ولادت پہ مت ڈالو، ولادت کے دن کا ڈالو تو اس کا کنفیوز نہیں ہوتا، بولے تو وہ مان رہا نہیں، میں ولادت کی بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا میں ولادت کا ڈالا نا، ابھی تو کنفیوژن ہے، ابھی تمہارے اور میرے اختلاف کیا وجہ ہے، ربیع الاول 8 میں ہوا یا 9 میں ہوا یا 11 میں ہوا یا 12 میں ہوا، پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ایسا دلیل کی بات رہتی تھی، یہ بات ڈالتا تو اوپر نہیں تھا، میں کیا بولا اس کو، ایسا نہیں، ولادت کو ڈالتا نہیں تو اسٹیٹس آدمی کو گمراہ کرنے کے واسطے ڈال کے ایسے اسٹیٹس چینج کر دے گا کہ نہیں بولا میں، اسٹیٹس برابر نہیں گلے کے بولا میں، صحیح بات نا، تو اس کے بعد آیا تو برتھ ڈے کرے، ولادت، اس کے بعد میلاد النبی کی بات آئی، اچھا ٹھیک ہے بھائی، میلاد النبی کی بات تم فالو کیسے کر رہے، برتھ ڈے کس کے اس میں سے آیا،
अकीदे किसकी अकीदे है, बर्थडे करता, अभी केक कटने को बर्थडे नहीं बोलते, अभी केक कटना एक पैसा वाला केक कट के करता, गरीब वाला मिठाई बांट के करता, गरीब थोड़ा पैसा वाला कपड़े पहन के करता, ऐसे सिचुएशन पर थोड़ा और पैसा वाला बाडी पाटे सबे पैसों के ऊपर जाके करता। मामला ये है ना कि देखिए इतनी सारी बात करे कोई फायदा नहीं। आपका यानी मिलादुन नबी पे क्या एतराज है कि मिलादुन नबी मनाना जायज है? मिलादुन नबी बनाने का सिस्टम गलत है बोल रहा हूँ मैं। सिस्टम गलत है यानी मिलादुन नबी गलत नहीं है? आपका सिस्टम मिलादुन नबी तो विलादत का दिन उसका प्रूफ दलील नहीं मिलती, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को भी नहीं मिलती है, उस दिन मरने की दलील मिलती है, इंतकाल हुआ पर मरने की बोले तो ऐसा मत समझो कि हुजूर को मर दिया बोल दिया, वैसा नहीं। अच्छा, दुनिया से पर्दा फरमाने के यानी उस दुनिया से पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की दलील मिलती है लेकिन पैदाइश की दलील नहीं मिलती। विलादत बोले तो क्या, यानी विलादत मतलब बर्थडे, पैदाइश। हाँ, बर्थडे की नहीं मिलती, उस दिन की नहीं मिलती, दूसरे दिन की मिलती है। हालांकि 3-4 20 में मिलते हैं, 3-4 20 एक में 9, ज्यादातर 2-3 हदीस 9 तारीख के मिलते हैं। अच्छा, 11-12 के मेरे को तो नहीं मालूम, 9 तारीख की पक्का। अच्छा ठीक है, फर्ज कर लेंगे कि 12 रबीउल अव्वल कुछ विलादत हुई, और तो उसी दिन ये भी हुआ ना, क्या बोलते हैं उसको, विलादत पर्दा, दुनिया से पर्दा फरमा उसी दिन ना। अच्छा, यानी आपके पास विसाल की दलील है, विलादत की नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, हो सकता है कि उसी दिन पैदा भी है, उसी दिन विसाल ही बोलते ना उसको अरबी में। हाँ, ऐसे पर्दा फरमा विसाल ही बोलते ना। विलादत भी उसी दिन है और विसालत भी उसी दिन है। देखिए अभी यहाँ पर ये दो बात बोल रहे हैं, एक आप कह रहे हैं कि हुजूर की विलादत उस दिन नहीं हुई, या फिर दूसरा नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ, वो बात कुछ कायम हो, मैं वो बात कुछ कायम हो। देखिए अगर आप अपना मौकीफ अगर बनाएंगे इस मामलात में ना, तो आप हो सकता है नहीं बना सकते, होने पे बनाइएगा। अच्छा, ठीक है वो अच्छा ठीक है, होगा। अच्छा, जैसे आपने कहा मैं मान लिया कि उसी दिन विलादत हुई और उसी दिन पर्दा फरमा गए जी। तो अभी अब हम मिलाद क्या वास्ते करते हैं, पर्दा फरमाने के लिए करते हैं या विलादत के लिए करते हैं? तो सबसे पहली चीज है कि उस दिन पर्दा फरमाए हैं आप, ये आपको प्रूफ तो करना होगा ना कि उस दिन पर्दा फरमाए हैं। उस दिन फरमा गए थे, दलील ठोस दलील है कि उनके फल्ले के अंदर, मेरे को उतना डिटेल्स नहीं मालूम है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। नहीं मालूम, मैं आलिम नहीं हूँ ना, अभी रहते कौन सी हदीस पूछे, अरबी में सुना दो, इंग्लिश में सुना दो, नहीं मालूम ना। अच्छा, अभी मेरे को आता नहीं, मैं आलिम नहीं है ना। अच्छा, मैं भी एक से सीख के आता हूँ ना। अच्छा, अभी अरबी में सुना दो बोले, मेरे को अरबी नहीं आती, तो अरबी में किधर से सुनो, मेरे को कुरान पढ़ने नहीं आता। अच्छा, लेकिन कुरान के चंद सूरे याद है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ रहता। तो विलादत उसी दिन हुआ ना, सारी पर्दा उसी दिन हुए ना। अच्छा, हुए या नहीं हुए उस दिन? अब देखिए, अब आप जो बोल दिए हैं तो फिर अब अगर मुझे इजाजत दीजिएगा तो हम कुछ बोलेंगे। अभी एक बात मेरी कंप्लीट कर देता हूँ। और बर्थडे, और रही बर्थडे की बात, अभी स्टार्टिंग में जो बात हुई ना, बर्थडे आके यहूदी और ईसाई और जिस दोनों उनका तरीका है। अच्छा, सही बात। हमारे नबी ने क्या फरमाया कि बर्थडे तुम जिस कौम की इताअत जिस कौम की कॉपी करोगे तुम उसी कौम से बिलोंग करेंगे। कहा लेके एक हदीस है, जो हदीस वो तो तुम्हारे को मालूम नहीं ना, हो सकता है कि मेरी बातचीत करने का और हदीस सुनने का ऊपर नीचे, मेरे को हदीस याद नहीं रहती, कुछ सेंटेंस याद रहता। वैसा तो है ना। अभी बर्थडे किसके इसमें है, और खुशियां क्या वास्ते बना सकते हैं? खुद का तो दूर की बात, हुजूर ने खुद मना किया कि मैं बर्थडे का मैं जन्मदिन की पैदाइश करते, तो सबसे बड़े आशीष खुद मना किया है। हाँ, किया है। क्या चीज के लिए? बर्थडे बोले तो सालाना विलासा साल गिरा, ऐसा तो कौन सी नहीं, वही वो तो बोल रहा हूँ मैं आलिम नहीं, मैं तुम फर्स्ट मेरे साथ जाहिल के साथ बात कर रहे हैं। तो जब हम जाहिल के साथ अगर हम बात करें तो फिर आप दावा पे दलील तो पेश कीजिएगा ना। बगैर दावे की, अरबी नहीं आती ना मेरे को, बगैर दावे की दलील जो है आपको मालूम है ना मरदूद है। मैं तो सेंटेंस तो बोल रहा हूँ ना, ऐसा है बोल के। बर्थडे के लिए कंप्लीट वर्ड नहीं है, हजरत अब इतनी देर आप बयान किया, मतलब खामोशी से सुने। नहीं, अभी मेरी बात कंप्लीट हुई ना। कंप्लीट बर्थडे का गले के नहीं देखे हैं। जिस कौम की तुम कॉपी करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गंडर ऑफ बर्थडे क्या करेंगे तो वो हिंदू के कौम में आता। हालांकि नबी क्या करे, मुहर्रम के दिन दो रोजा रखते थे। हालांकि नबी क्या करे, उस दिन यहूदी या ईसाई कुछ लोग रोजा रखते हैं बोल के पोस्टपोन कर दिए, प्रीपोन पोस्टपोन, एक दिन खेला है एक दिन बाद। सही तो यह हदीस को आपको मालूम होगी ना? क्या? मोहर्रम का रोजा रखना ना। हाँ, वो एक दिन पहले या एक दिन अच्छे, मोहर्रम का दिन और एक दिन पहले करो या एक दिन पहले बात करो। उसी दिन ईसाई लोग पूरा रखते थे, तो उसको चेंजेस करने के लिए नबी क्या कर दिए, एक दिन पहले रखो एक दिन बाद रखो, 2 रोजे रखो बोले के बोले।
टाइम पे, सर्टेन टाइम पे ले, सही बात ना? कौन बताया आपको ये वाली बात? ऐसा है या नहीं है? नहीं है ऐसा। हाँ, तो ठीक है, तो अब आप देखिए, आप जो बोल दिए, आप खामोशी के साथ मेरी बात को सुनिए अगर आपको समझना है तो, क्योंकि अगर आपको देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम बस इसलिए आपसे बात कर रहे हैं कि हम आप तक हक बात पहुंचा दे, बाकी मानना या नहीं मानना ये आपकी हक बात सही, हक बात है तुम्हें। मैं ये नहीं बोल रहा कि सूद हलाल कर दो, सूद हराम कर दो, हलाल हलाल हराम हराम ही है, तुम्हारे को भी मालूम, मेरे को मालूम। हक बात इसमें हो रही है, इसमें हो रही है, तो दूसरों की कापी मत करो, ये बात पे बात करना होता है। ठीक है, तो देखिए दो चीज, एक चीज आपने ये कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक 12 रबीउल अव्वल है, ये प्रूफ नहीं है, ठीक है ना? उस दिन हुजूर की विलादत नहीं हुई है, उस दिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ है। तो हम अगर उस दिन, विसाल मतलब डेथ, उसी दिन ना, हाँ उसी दिन आप कह रहे हैं आपके मुताबिक कि उसी दिन आपका विसाल हुआ है, डेथ हुआ है, तो हम अगर उस दिन खुशी मना रहे हैं तो उस दिन तो विलादत है ही नहीं, बर्थडे तो है ही नहीं आपका, तो हम अगर खुशी मना रहे हैं तो फिर हम तो डेथ पे खुशी मना रहे हैं। तुम मेरा वो एक एतराज आपका। दूसरा एतराज ये है आपका कि हम गैरों की मुशाबिहत नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों की मुशाबिहत करने से मना फरमाया है। हाँ सही, ठीक है, और फिर नहीं, हम आपके दावे को भी पेश कर रहे हैं कि आपका ये एतराज है, तो इस पर हम आपको बात करेंगे। और तीसरा, आपने ये कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्थडे मनाने से मना फरमाया, जबकि इसकी आपके पास कोई दलील नहीं है। मेरे पास नहीं है, आपको चाहे तो मैं हमारे आलिम से लेकर देता हूं। ठीक है, आप अपने आलिम से लेकर दे दीजिएगा, जब आप दीजिएगा तब आपके दावे पे दलील पेश होगी, तब वो बात साबित होगी तो उस पर बात करेंगे। हालांकि बगैर दावे की दलील हमारे नजदीक मरदूद है। पे मैं छोटी दलील दे दिया कि दूसरे कौम की काफी अभी आ रहे हैं, अभी उस पे भी आ रहे हैं हज़रत, अच्छा, एकदम इत्मीनान और सुकून से। तो सबसे पहले हम विलादत मुस्तफ़ा पे बात करेंगे, क्योंकि उस दिन अगर हुजूर की विलादत ही नहीं हुई तो फिर खुशी मनाना ही बेकार है। हाँ सही है ना? तो देखिए, खुशी मनाने के लिए मुसन्नफ इब्न अबी शाबा की हदीस शरीफ है, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। ठीक है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1500 से ज्यादा हदीस शरीफ इमाम इब्न अबी शाबा से मुस्लिम शरीफ में नकल किए हैं, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम इब्न अबी शाबा से तकरीबन 66 या 60 हदीस से ज्यादा नकल किए हैं अपनी बुखारी शरीफ में ना। तो मुसन्नफ इब्न अबी शाबा इस हदीस शरीफ को नकल फरमाते हैं। फिर वहाबियों के मोतबर आलिम हाफिज इब्न कसीर अपनी 2 किताब में इस हदीस शरीफ को इमाम इब्न अबी शाबा के हवाले से नकल करते हैं। एक अल बिदाया वन निहाया के जिल्द 2 सफ़ा नंबर 160 पे, और अल सीरा अल नबविया के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 142 पे हदीस शरीफ को नकल करते हैं। और वो हदीस शरीफ क्या है कि हजरत अफ़ान ने हजरत सईद इब्न मीना से रवायत किया, वो फरमाते हैं मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन से सुना, वो दोनों फरमाते थे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। ठीक है, पीर के दिन हुई। ये सही तरीन रवायत, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल, दोनों जिक्र है हजरत यहाँ, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। तो ये हदीस शरीफ किसमें है? इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम मुसन्नफ इब्न अबी शाबा में यह हदीस शरीफ है। हाफिज इब्न कसीर, जिसको वहाबी बहुत ज्यादा मानते हैं, उन्होंने अल बिदाया वन निहाया में इसको नकल फरमाया है, और अपनी किताब अल सीरल नबविया के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 142 पे नकल फरमाया है। अब इस हदीस शरीफ से क्या साबित हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल, पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। और ये फरमान किनका है? कौन फरमा रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत सहाबी रसूल। कौन सहाबी फरमा रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। दोनों सहाबी फरमाते हैं कि हुजूर की विलादत कब हुई? पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को। है ना? तो इस हदीस शरीफ से साफ साबित हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल को। है ना? अब जो इससे हट के बात करेंगे हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम तो सहाबी रसूल हदीस सही की बात मानेंगे। दूसरी हदीस हम आपको और पेश कर देते हैं। इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब मुस्तदरक अला सहीहैन के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 125 जिल्द 2 सफ़ा नंबर 125 पे रिवायत फरमाते हैं कि हजरत सईद इब्न जुबैर ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील के साल पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। ठीक है, तो ये 2 हदीस शरीफ से साफ साबित हो गया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक कब हुई?
12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल को हुई। तो आपको 2 हदीस शरीफ हम पेश कर दिए, 2 हदीस शरीफ से साफ साबित क्या हो गया? साबित हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक कब हुई? 12 रबीउल अव्वल। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये सही बात है, जो 12 रबीउल अव्वल को भी ठीक है, उसका क्लियर हो गया। अच्छा, ये विलादत, सॉरी क्या बोलते हैं, विसाल हाँ, विसाले मुबारक जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई है। इस पर देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने साफ अपनी किताब में लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विसाल जो है 12 रबीउल अव्वल को हुई नहीं सकती। कभी हुई हुजूर की विलादत पे आती है 2 रबीउल अव्वल कि हुजूर की विलादत मुबारक 2 रबीउल अव्वल को हुई है। हाफिज इब्ने कसीर जो वहाबियों के अहले हदीसों के बहुत ही मोतबर आलिम है, उनको वो बहुत मानते हैं, वो अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं। हमारे इसमें नहीं आते हैं, नहीं, जो एतराज कर रहे हैं ना, एतराज है ना, वहाबी के हमारे उसके एतराज बहुत है। वहाबी के कंसेप्ट में आ गए तो थोड़े तलाक के मसले में आ गए तो गुना जाते हैं, तलाक के और थोड़े भाई इतलाफ रहते हैं, इतलाफ क़यामत तक तुम्हारे। देखिए, देवबंदी और अहले हदीस ये दोनों जो है एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो उन दोनों को वहाबी कहते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और अहले हदीस और देवबंदी अपोजिट। अच्छा, चलिए ठीक है, अभी इस पर हम नहीं बात करेंगे। आप कह रहे देवबंदी और अहले हदीस अपोजिट है ना, तो देवबंदियों की जो हकीमुल उम्मत है ना, अशरफ अली थानवी, हाँ, अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं खुद कि हुजूर मलफूजात में कि हुजूर की विलादत मुबारक 12 रबीउल अव्वल किसी लिहाज से नहीं हो सकती, जिसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जो है, जिसने भी कहा कि ये बात मशहूर हो चुकी है कि 12 रबीउल अव्वल को हुई है, ये गलत बात मशहूर हो गई है, ये गलत तहकीक है। नहीं, कैसा तहकीक हो सकती है? अभी जब भी अच्छा ठीक है, मैं मान लिया। अभी थोड़ा मैं तो नहीं मानता, आप देवबंदी हो, ठीक है ना, और आपके हकीमुल उम्मत जो बहुत बड़े आपके नजदीक आलिम हैं, उलमाए देवबंद के, उन्होंने ये बात दावे के साथ लिखी है, एक किताब में नहीं, 2 से 3 किताब में, कि हुजूर की विसाल जो है 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई, ये गलत बात तहकीक है। अच्छा, ठीक है, अब 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए ना, पीर के दिन पैदा हुए हैं, हुजूर की विलादत पीर के दिन। हर हफ्ता हर वीक में पीर का दिन रोजा रखते थे। हाँ, क्यों रखते थे? जिनकी विलादत हुई थी उस दिन। सही ना? ठीक है, सही ना? ठीक है। हाँ, तो रोजा रख के ये करते हैं, या खुशियां मना के खा के खुशियां मनाते हैं, रोजा रख के हम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखे, तुम खुशियां खा के नहीं, हम रोज खा के मौज करके ईद बना के मिलाद कर रहे हैं। अभी इधर क्या बोलते हैं? अच्छा, ठीक है, चलिए। देखिए, चूंकि आप अहले हदीस हैं नहीं, तो अहले हदीस क्या है कि किसी बुजुर्गाने दीन, किसी अइम्मा इकराम, किसी मुहद्दिसीन अहले हदीस बुजुर्गों को मान लेते तो अहले हदीस नहीं रहते। हाँ, तो अब देवबंदियों का मामला ये है कि देवबंदियों का ये दावा होता है कि हम सल्फ सालिहीन के रास्ते पे चलने वाले हैं, हम बुजुर्गाने दीन के रास्ते पे चलने वाले हैं, हम अइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन के रास्ते पे चलने वाले हैं, हम गैर मुक़ल्लिद नहीं है। हमारे नजदीक बुजुर्गाने दीन का भी एहतराम है, सल्फ सालिहीन का भी एहतराम है, वो उनकी बातों को मानते हैं, है ना। तो हम क्या है कि अपनी मन की नहीं करेंगे। तो अब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रख के ये बता दिया कि मैं हर हफ्ते अपनी विलादत मुबारक मनाता हूँ, और ये शुक्राना मुबारक का कैसा बनाते हैं? रोजा रख के बनाते हैं। हाँ, अब सुनिए मेरी बात, खा के नहीं बनाते। देखिए हजरत, पहले मेरी बात पूरी जवाब को आप सुन लीजिए, अगर उससे इत्मीनान बख्श आपको जवाब लगेगा तो मानिएगा, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी जवाब दे देने दीजिए, ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह आपको तशफ़्फ़ी बख्श जवाब देंगे। हाँ, अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे, ठीक है? तो अब इस चीज से ये साबित हो रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत मुबारक मनाएं, लेकिन रोजा रख के मनाएं। और रोजा आपने बतौर, सुनिए पूरी बात सुनिए, बतौर शुक्राना आपने रोजा रखा। तो शरीयत में शुक्र अदा करने के तरीके बहुत सारे बताए गए हैं। आप रोजा रख के शुक्राना अदा कर सकते हैं, आप लंगर का एहतमाम करके शुक्राना अदा कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ के शुक्राना अदा कर सकते हैं, आप गरीबों को सदका खैरात करके शुक्राना अदा कर सकते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदार को लंगर खिला के, खाना खिला के शुक्राना अदा कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन अब ये तरीका हुजूर, मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? तो एक चीज तो है कि विलादत मुबारक, हुजूर की विलादत की खुशी जो मनाना, हुजूर से साबित है कि हुजूर ने अपनी विलादत की खुशी मनाई हर हफ्ते, शुक्राना अदा किया अल्लाह की बारगाह में रोजा रख के।
تو اب وہ ائمہ دین محدثین فقہاء اکرام اور جو سلف صالحین ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا، ہم آپ کو ان کی بارگاہ سے بتاتے ہیں. دیکھیے جو مولوی اور جو عوام اپنی بات اور اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو لات ماریے. اگر کوئی محققین بزرگان دین سلف صالحین کی اگر بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ ان کو قبول کر لیجئے، کبھی گمراہ نہیں ہوئیے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سیدھا سا اصول ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں. دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آپ مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں ہے نا؟ پورے عالموں کو، پورے اس کو مانتے ہیں الحمدللہ. دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو دیوبندی حضرات ایک دم دل و جان سے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہے نا؟ اب آئیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب لکھے ہیں جس کا نام ہے ما سبت من سنہ فی ایام سنہ، صفحہ نمبر 79 پہ آپ تحریر فرماتے ہیں. بولنے سے میرے کو فائدہ نہیں، کیوں بولے تو نہ تو میں اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں نہ میرے کو فائدہ نہیں. تو ہم واٹس ایپ بھیج دیں گے آپ کو، واٹس ایپ میں آپ اس کا اسکین کر دیں گے. ابھی میں ایجوکیشن میں ہوتا ایجوکیٹڈ عالم نہیں ہوں، میں جاہل آدمی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، نمبر بولنے سے فائدہ نہیں. پھر بھی دیکھیے ہم کیا ہے نا کہ اگر میرے پاس نالج ہے تو ہم آپ کو پورا فل کتاب کا نام کون سے صفحے پہ لکھا ہے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. ہاں ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی بھی تو ان کا نام لے کے بغیر کتاب کی دلیل دیے کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے، لیکن ہم کیا ہے کہ ساری چیز دیں گے آپ کو، اسکین پیج بھی دیں گے اس کا. اب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف یعنی کمی. ابو لہب کو جانتے ہیں نا، کافر و مرتد جب وہ مر گیا تھا تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت مبارکہ پر کے خوشی منانے کے موقع میں ابو لہب کو جہنم میں جو عذاب دیا جا رہا تھا اس میں کمی کر دی جاتی ہے، جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے. تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت مطلب اپنی اوقات کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے نا، خرچ کرتا ہے. خدا کی قسم، شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ محدث ابن جوزی پھر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، کون فرما رہا ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی. کن کا قول نقل فرما رہے ہیں؟ محدث ابن جوزی کا قول جو 510 ہجری کے محدث ہے. ٹھیک ہے، آج کے محدث نہیں، الحمدللہ 900 سال پہلے کے محدث ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اجر و ثواب، میلاد النبی کا اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا مسلمان جو مناتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے. خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا. سال بھر کچھ بھی کرو. سنیے، پہلے ہم اپنی بات نہیں، محدث کی بات فرما رہے ہیں، آپ اس کو سنیے، آگے پورا کمپلیٹ ہونے دیجیے. پھر فرماتے ہیں اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا ہے. کون فرما رہا؟ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، اس کی راتوں میں صدقہ و خیرات، خوشی کے اظہار کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے. اس موقع پر وہ ولادت بسعادت کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں. میلاد شریف منانے کے خصوصی تجربات میں محفل میلاد منعقد کرنے والے سال بھر امن و عافیت میں رہتے ہیں اور یہ مبارک عمل ہر نیک مقصد میں جلد کامیابی کی بشارت کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرمائیں. کون فرما رہا؟ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب یعنی رات کو بطور عید مناتا ہے. کیا مناتا ہے؟ اللہ پاک رحمت نازل فرمائے اس شخص پر جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
कभी भी रात में नहीं करते, सल्लल्लाहु अलैहि कभी भी वसल्लम दिन के में शब, करते। पूरी बात सुनिए, क्या आप अपनी ही बात कीजिएगा। नहीं, वो बात को याद आते ना बात। हाँ, तो यानी आप उनकी बात को रद्द कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उस शख्स पे रहमतें नाजिल फरमाता है जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब बतौर ईद मनाता है। और आगे अब सुनिए यहाँ पर वहाबियों के बारे में क्या फरमा रहे हैं, मनाता है और जिस बदबख्त के दिल में कीना और दुश्मनी की बीमारी है वो अपनी दुश्मनी में और ज्यादा सख्त हो जाता है। ये तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का फरमान है, ये ना ही आला हजरत फरमा रहे हैं ना ही बरेलवी आलिम फरमा रहे हैं। और हम जो मिलादुन नबी मनाते हैं ये अपने मन से हम नहीं मना रहे, हमें जो बुजुर्गाने दीन ने मुहद्दिसीन ने जो फरमाया है, जो तरीका उन्होंने बताया है, हम उस पर बना रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग एतराज करते हैं कि तुम हुजूर की विलादत पे इस तरह क्यों खुशी मनाते हो। अरे भैया हम नहीं मना रहे, ये तो 510 हिजरी के मुहद्दिस इब्ने जौजी ने फरमा दिया। और सल्फ सालिहीन मुहद्दिसीन बुजुर्गाने दीन ने किसी ने भी बिदअत नहीं कहा, सबने कहा कि मिलादुन नबी पर खुशियां मनाने वाले को अल्लाह पाक अपने नेमतों भरे जन्नत से नवाजेगा। अल्लाह पाक उस पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। अब जो मुहद्दिसीन और बुजुर्गाने दीन के इन मौकीफ को और उनके इस फेल को बिदायत कहे, उन पर लानत भेजे, उनको गुमराह और जहन्नमी कहे, वो शख्स खुद गुमराह और जहन्नमी होगा। होगा ना। तो अब बताइए इसमें आप क्या एतराज है, इसमें एतराज करने लायक क्या बात रहेगी। एतराज करने की बात यह रहेगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी खुशी की चीज रहती ना रात में नहीं मनाते। अच्छा, तो यानी मुहद्दिस इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गलत लिखे? नहीं लिखा, रात में नहीं मनाते। तुम बेसिकली जाके देखो, सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचो। अभी कभी भी रहते सुबह का वक्त पढ़ने के लिए बोले, अपने कयास दीन में अपनी सुनिए दीन में अपने कयास को दाखिल करना हराम है, बिदअत है। बगैर दलील अपनी सोच को दीन और शरीयत में दाखिल करना हराम है। नहीं, दीन के एतबार से बात करो। अभी कभी पढ़ते हैं, दुनियावी एतबार से मत बात कीजिए, दलाइल की रोशनी में आप मेरे से बात कीजिए। कभी पढ़ते हैं, ईद की नमाज कभी पढ़ते हैं, खुशियां कब से बनाने के लिए, रात से बनाने बोले। 27वीं रमजान की शब जब कुरान का नुज़ूल हुआ था, जो शब कद्र लैलतुल कद्र मनाया जाता है, उस दिन जश्न मनाने के लिए थोड़ी, तो उस रात जो है, उस रात आप जो लैलतुल कद्र कब मनाते हैं? इबादत करने के लिए बोलते हैं, तिलावत करने के लिए बोलते हैं। ये भी तो इबादत और तिलावत ही होती है ना। इसमें क्या डांस करना, क्या डांस करना? डांस करना हराम है हमारे मजहब में। तुम नहीं मानते क्या? नहीं, हम डांस करने को एकदम हराम मानते हैं। आप मानते हैं डांस करने को? हाँ, आप क्या मानते हैं? हराम मानते हैं। हाँ, तो फिर तो बहस किस बात पे हो रही है? मिलादुन नबी की बात पे बहस हो रही है, डांस करने पे बहस ही नहीं हो रही है। डांस करने को हम भी हराम कहते हैं, आप भी हराम कहते हो। हाँ, डांस करने को कौन जायज कहता है? किसी एक मेरी किताब से साबित कीजिए कि हमारे किसी उलमा इकराम ने लिखा हो कि डांस करो। अक्सर हमारे उलमा इकराम ये बयान करते हैं कि भैया डांस करना और उछलना कूदना ये सब हराम है, नाजायज काम है। डोल बैंड बाजा मर जाते हैं ना। वो क्या बैंड बाजा बजाते? कोई बैंड बाजा नहीं बजाता है, वो भी हराम है ना। हाँ, एकदम हराम है। बैंड बाजा जो भी बजाता है वो हराम है। मिलादुन नबी के मौके पे मुहद्दिसीन ने फरमा दिया कि मिलादुन नबी की खुशियां मनाने वाले को अल्लाह पाक नेमतों भरे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर रहमतें नाज़िल फरमाए। पूरा बता दिया, लेकिन तरीका नहीं बताया। क्या तरीका नहीं बताए? खुशियां कैसा बनाते हैं वो तरीका नहीं बताया क्या? अच्छा, देखिए हम आपको खुशियां कैसे मनाते हैं, हम वो तरीका आपको बता रहे। 1 मिनट, अजान हो रही है, हम अजान के बाद कॉल करते हैं आपको। 3:30 बजे? हाँ, यहाँ असर की अजान हो रही है। अच्छा।